Women are the largest untapped reservoir of talent in the world. A very good evening to one and all. I, Dr. Mariam Haider, research scientist at Indian Institute of Technology, Kanpur, as well as the founder director of My Farhad Juice, along with Ms. Sachita Nadeem. She's a well-known social worker and a founder director of a very well-known organization, Dr. Zakir Hussain Foundation, which runs in Aligarh. She is also doing an unmatched social and humanitarian work since 2004. She has also maintained a network of women activists in Aligarh to show the solidarity in women issues like female feticide, women's safety, and women empowerment in the interiors of Aligarh UP. We would like to express our sincere gratitude to this amazing organization called Women Innovator, which is a virtual incubator of the women. Women Innovator is the first virtual incubator of women, Nari Shakti, which was founded in year 2014 by Ms. Tripti Singhal Somani with a motive in mind to make a virtual incubator for women entrepreneurs or the women who have exceptional ideas and want to get a platform to grow. It is an initiative with the goal of helping women entrepreneurs to grow local economies by providing business education, training, mentoring, network, and whatnot. Gaining a new revenue contract through interaction with industry leaders, provide media research, digital and through print media, through their story on exclusive their YouTube channel. The WeBit chapter of the Women Innovator provided the opportunity to the talented women of 100 smart cities to come out of their shell and to showcase their entrepreneurial skills. Numerous women enthusiastically participated in this WePitch program. So, a small message to all the females out there. अगर आपके पास हिम्मत है, हौसला है और कुछ करने का जज्बा है, तो विमेन अवेटर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है. Without carrying much further, I would like to welcome our esteemed guest for the day, Ms. Gitanjali Sharma and Ms. Rubina. Ms. Gitanjali Sharma is a senior government counsel, Government of India, senior counsel, legal advisor, Sport Authority of India, former senior standing counsel, National Anti-Doping Agency, NADA. We are happy to have such a talented and a strong personality with us. I would then like to introduce Ms. Rubina. I would like to ask Ms. Sajida to please introduce Ms. Rubina. Thank you, Dr. Mariam. Ms. Rubina is an administrative officer in the Commerce Department of Aligarh Muslim University, and she's also the founder of TAP Creations. So now I request our guest to please briefly introduce yourself with our audience. So let's start with Gitanjali ma'am. Over to you, ma'am. सभी मातृशक्तियों को मेरा नमस्कार, नमन. हेलो. Yes, ma'am. या सेकंड आवाज आ रही है पीछे से. There's lots of noise in the background. Hello. Yes, ma'am. Yeah, can you hear me? Yes. Yes, ma'am. या एक्चुअली एक सेकंड आवाज आ रही है पीछे से, थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है. हेलो. Hello, yes, ma'am. या आप ठीक है? Yes, ma'am. मैम आप बोलिए. Hello? हम आपको सुन पा रहे हैं. ओके ठीक है. सो सभी मातृशक्तियों को मेरा नमन, मेरा नमस्कार. प्लीज कहीं से अगर ये बैक स्टेज आवाज आ रही है तो म्यूट कर दीजिए अपने माइक को ताकि डिस्टर्ब ना हो. बहुत 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 तेज आवाज है, प्लीज. बिल्कुल ही नहीं समझ आ पा रहा है. हेलो.
Yes. यस मैम, आप ऑडिबल हैं। ओके, सुन पा रही हैं? जी मैम। Yes, yes, we can hear you, ma'am. या श्योर। सो बहुत ही मेरा आज सौभाग्य है कि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया है एज अ गेस्ट, एंड अपने आप को ये बताने के लिए कि समाज में नारी शक्ति का क्या योगदान है और कैसे हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को किस तरह से हम लोग आगे ले जा सकते हैं। वो आपने एक आज जो इस तरह का प्रोग्राम रखा है उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस प्रोग्राम, एंड थैंक यू साजिदा मैम, एंड थैंक यू डॉक्टर मरियम। थैंक यू। थैंक यू मैम। I can't. Next over to you, Rubina. Introduce yourself. Yeah, my name is Rubina, and I'm working in the administrative block of Commerce Department as assistant admin. And I've been running this organization called TAP Creations, and we basically specialize in phool patti work. And I've been into this business for last almost 15 years, and I've been working with the women of Aligarh, and I want to showcase their talent as much as I can. And yes, and it's a pleasure being here, and it's a pleasure and honor to be, invited on this platform to speak. Thank you, Rubina. Over to you, Mariam. Okay, so now without wasting of much time, we would like to know your stories. So we would start with a round of questions. So first question, Gitanjali ma'am आपसे, सुप्रीम कोर्ट का सफर आपने कैसे तय किया, उस पर हम चाहते हैं कि आप कुछ रोशनी डालें और हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं। जी देखिए, जैसा कि मैं अलीगढ़ के एक बहुत ही छोटे से गांव की बेटी हूँ, केशवपुर जोफरी, जो कि इतना ज्यादा रूरल में है कि वहां से कन्वेंस भी आफ्टर 3 किलोमीटर के पे जाके कन्वेंस मिलता था। ऐसे समाज से आती हूँ जहाँ पे हमेशा बेटा बेटी में भेदभाव किया जाता रहा है, और ऐसे जगह, रूरल जगह से आती हूँ जहां पर कानून के अभाव में लोगों के साथ बहुत ही अन्याय होते मैंने देखा है। तो जब मैं छोटी थी और गांव में रहती थी, तब मैंने अपने यहाँ के समाज को बहुत ही ज्यादा इस तरह से पाया कि भाई उनके साथ अन्याय होते और किसी भी क्षेत्र में आगे न बढ़ते देख लोगों को मैंने एक मन ही मन मैंने प्रण किया कि मैं अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने अलीगढ़ क्षेत्र के लिए क्यों न मैं एक ऐसा प्रण लूं जिससे मैं अपने यहाँ के लोगों को न्याय दिला सकूं और ऐसा काम कर सकूं जिससे लोगों को न्याय भी मिल पाए और अपने आप में एक ऐसी शक्ति का उदाहरण बनूं जो आगे निकल के एक ऐसी क्षमता रखे कि दूसरों, अपने लिए तो करना ही है लेकिन दूसरों के लिए भी वो प्लेटफॉर्म दे सकूं जो एक जरूरत थी उस वक्त पे, एक समाज को, एक क्षेत्र को, अलीगढ़ क्षेत्र को जरूरत थी। तो मैंने बहुत संघर्ष किया। खेलकूद में होने के साथ में मैंने कानून की पढ़ाई पढ़ी, और जब मैं कानून की पढ़ाई पढ़ रही थी तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं अकेली बेटी होती थी क्लास में जो लॉ की पढ़ाई पढ़ रही थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि नहीं, लड़की अगर वकील बन गई तो जो है वो फिर शादी नहीं होगी और भाई जो है लोगों को परेशान करेगी, या उस तरह का मतलब उस टाइम पे माना जाता था। खेलकूद में भी आगे नहीं निकलने दिया जाता था। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगी उसके लिए मैं आपको, कि जब मैं निकलती थी अपने गांव से तो 3 किलोमीटर के बाद मुझे बस मिलती थी। रास्ते में जैसे 2-4 लोग मिलते थे तो वो मेरे भाइयों को और मेरी माँ को ये भी कहते, अरे वो ताइक्वांडो खेलती है ना, हाथ पांव टूट गए ना लड़की के किसी दिन, तो आप देख लेना कोई लड़का वड़का भी नहीं मिलेगा, लोगों के लिए करना तो बहुत दूर। तो मतलब ये सब ऐसे मैंने 1000 क्या 1,00,000 लोगों के ताने सुन के भी मैंने कड़ी मेहनत की, पढ़ाई की, आगे बढ़ी, और खिलाड़ी होने की वजह से मैं अपने यहाँ से आगे बढ़ पाई। मैं
अलीगढ़ की ताइक्वांडो की बेटी खिलाड़ी रही हूँ और पहली बेटी खिलाड़ी रही हूँ। तो वहां से मैं निकल के ये मेरा जाता है यहाँ तक दिल्ली से बाहर तक आने का जो रास्ता मुझे दिया वो मुझे स्पोर्ट्स ने दिया, और कानून की पढ़ाई ने मुझे सुप्रीम कोर्ट आने तक का रास्ता दिया। तो दोनों पढ़ाइयों के कॉम्बिनेशन से मैं यहाँ तक आई, और आज जब अपने लोगों के लिए मैं न्याय के लिए लड़ाई लड़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं बहुत सारे लोगों के लिए इतना काम कर चुकी हूँ, इतना न्याय दिला चुकी हूँ, इतने केसेस लड़ चुकी हूँ। 1800 से ज्यादा मुकदमे मैं ऐसे लड़ चुकी हूँ जो सिर्फ गांव और रूरल एरियाज के क्षेत्र के लोगों के लिए, जिनको मैंने न्याय दिलाया है। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आज भी मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ती हूँ। और आप सब लोगों के सहयोग से मैं हमेशा ही लड़ना चाहूंगी ये लड़ाई, अपने समाज के लिए, अपने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और अपने अलीगढ़ क्षेत्र के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम, दैट्स ऑसम। आप जैसे लोग वाकई हमारे लिए मिसाल है और हमें आप जैसे लोग चाहिए। थैंक यू वेरी मच, इट्स एन ऑनर टू हैव। Yes, definitely. ओवर टू यू मिस साजिदा जी। गीतांजलि मैम, हैट्स ऑफ टू यू। आप जो काम कर रही हैं वो वाकई बहुत बड़ा काम है। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद मिस रुबीना। What made you start this applique work business, and what was the reason behind starting this business? See, basically, मेरा जो background है, मतलब I did my graduation from Aligarh, and then मेरा ये हमेशा से dream रहा कि मैं मतलब दिल्ली में पढ़ूं और वहीं पे job करूं। Then I went, after my graduation, मैं दिल्ली चली गई and I did my advertising and communications management from Delhi. So I was from a completely different background. My background was advertising. But you know, fate had some other plans for me. I got married, and then I came back to Aligarh and I had a baby. So when I had a baby, so I had no other option. I had no choice. I couldn't move to Delhi, and I didn't want to work full time, say like 9 to 5, where I have to leave my baby at home. तो बस मुझे उस टाइम पे ये था कि I have to do something wherein I can stay at home for the sake of my child, and I wanted to be my own boss. So you know, clothes, as is every girl's passion, it was mine too. So I thought of starting something which was based in Aligarh, and I had a lot of कारीगर्स around me. मेरे घर के आसपास बहुत सारी लड़कियां रहती थी, and I used to see them कि वो लोग इतनी मेहनत करती हैं, इतना काम करती हैं। तो फिर बस from there only that idea came up to start something related to फूल पत्ती। मैंने सोचा कि अलीगढ़ में रहते हैं, why not promote this as an art. And I knew कि मतलब you know, it was like a dying art. बहुत से लोगों मतलब खोता जा रहा था ये, एंड बहुत ज्यादा मेहनत करती थी लड़कियां, एंड उनको उतना रिजल्ट मिलता नहीं था। तो बस इसी वजह से आइडिया आया कि मतलब अब मैं घर पे भी रह पाऊंगी, आई वुड गिव टाइम टू माय चिल्ड्रन आल्सो, एंड आई वुड डू समथिंग फॉर द वुमेन हु आर अराउंड मी, यू नो, टू अपलिफ्ट देम। सो दैट्स हाउ दिस ब्रेन चाइल्ड स्टार्टेड। एंड फिर 2004 में आई थिंक आई स्टार्टेड, बहुत इनिशियल लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे मैंने शुरू करा, और बहुत मैंने डिफिकल्टीज ऑन द वे फेस करी। आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ चैलेंजेस, लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, बीइंग अ सिंगल मदर and being a woman, and working with I had to go to Delhi सारा सामान लेने के लिए. So I faced lot of challenges, lot of problems, but then that's how it is. No business is easy and no work is easy, मुझे लगता है. So that's how it all started. The journey began from here, and then it's a long story. वेरी गुड रुबीना। और आपका हार्ड वर्क जो है वो नज़र आता है, आपकी जो सूट्स हैं और जो आपके क्या कहते हैं काम है वो वाकई यूनिक है। और मैंने खुद भी एक सूट आपसे जो है कुछ परचेजिंग की थी, तो वो जहाँ भी मैं पहनती हूँ तो मुझे लोग पूछते ज़रूर हैं कि ये आपने कहाँ से लिया था। बहुत ही फिनिश्ड वर्क है आपका, तो आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद गीतांजलि मैम। गीतांजलि मैम, आप राष्ट्रीय खेलों में लोकल खेलों को किस प्रकार अलग करके लोकल खेलों को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम कर रही हैं? देखिए साजिदा मैम, जैसे कि आपने मेरा अभी इंट्रोडक्शन दिया था कि
मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लीगल एडवाइजर एंड एडवोकेट हूँ, एंड नाडा की हूँ, एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की हूँ, नेहरू युवा केंद्र भी देखती हूँ, और एक खुद खिलाड़ी रही हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मैं एक गांव की बहुत ही ये पिछड़ा गांव जिसको कह सकते हैं वहां से की मैं रहने वाली हूँ। तो मैंने एक चीज सारे गेम्स के अंदर पाई कि आज भी जो हमारे गांव के जो लोकल गेम्स हैं, लाइक खो खो, कबड्डी, कुश्ती, रस्साकसी, रोपवे एंड वॉलीबॉल, इस तरह के जो अपने लोकल गेम्स हैं, इनसे क्या है कि आपकी इंसान की खुद भी मजबूती बनती है। जैसे मजबूती बनती है, जैसे हम अदर गेम्स खेलते हैं तो उसमें एक मजबूती वाला थोड़ा कम होता है, लेकिन ये जो गेम्स है लाइक मार्शल आर्ट, जैसे कि मैं ताइक्वांडो की खिलाड़ी रही हूँ, और तो मजबूती से मेरा सेंस है कि अपने आप को भी आपको डिफेंस आप कर सकते हो अगर कोई परिस्थिति आती है तो। क्योंकि ऐसा टाइम था कि उस टाइम पे देखिए अभी बहुत टाइम सुधर गया है, लेकिन एक टाइम था कि बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ चोरी डकैती और ऐसा सब माहौल होता था कि बेटियां बाहर से बहुत कम निकल पाती थी। तो जब मैं बाहर निकल के आई जब, तो मैंने देखा कि नहीं, गांव की बेटियों को जो मुश्किलें मैं झेलती थी, तो गांव की जो आज भी जो खिलाड़ी हैं, आज भी जो गांव की बेटियां हैं, उनको आज भी पता है कि मजबूती की ज्यादा जरूरत है, पहले सबसे पहले। तो वो मैंने लोकल खेलों को, और हमारे देश का भी देखिए जितना नाम आज तक हुआ है, देखिए वो हमारे लोकल गेम्स में जाके गांव की जो बेटियां जो मेडल लेके आई हैं, उनसे हमारे यहाँ का ज्यादा नाम हुआ है। और उससे मजबूती भी आती है, उससे मेंटली फिजिकली बहुत सारी जो है वो इंसान फिट भी रहता है, और आगे निकल के चांसेस भी ज्यादा हैं, क्योंकि वो कम सुविधाओं के अभाव में आगे बढ़ने वाले गेम्स हैं हमारे जो लोकल गेम्स हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा रग्बी गेम्स है, जैसे मान लीजिए गोल्फ है, मान लीजिए स्विमिंग है, इनमें बहुत सुविधाओं की जरूरत है। तो इससे देखिए गांव की बेटी तो वहां तक नहीं जा सकती है। तो मेरा जो प्रयास है आज की डेट में, वो जो हमारी एसोसिएशंस हैं, जो खेल एसोसिएशंस हैं, उनसे जुड़ के, और जो गांव के, जैसे मैं आपको एक छोटा सा इसमें उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे कुश्ती है, तो 2014-15 से पहले जो अलीगढ़ में ही कुश्ती की बेटियां कुश्ती लड़ने नहीं आ पाती थी, क्योंकि वहां मिट्टी पे अखाड़े पे लड़ी जाती थी, और जो अखाड़े में भी सिर्फ खलीफा जो जेंट्स ही होते थे, तो वो और बेटियों को नहीं जा पाती थी, बड़ी बिल्कुल सुविधा नहीं थी। तो मैंने वहां अलीगढ़ में रह के जो बेटियों को इंकरेज किया, फर्स्ट मैंने गांव की बेटियों को, और कुश्ती में उनको आगे लेके आई। अलीगढ़ में मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे लाइक साजिदा मैम खुद ही बैठी हैं यहाँ पे, इन्होंने भी मुझे खेल में बेटियों को आगे लाने के लिए सपोर्ट किया है। तो कुश्ती में आगे लाना आप जानती हैं आगे आसान काम नहीं है, खासतौर से बेटियों को। तो वहां पे कुश्ती के गद्दे लेके आए, एसोसिएशन बनाया गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करके, और फिर उसमें मैट का अरेंजमेंट करवाया, प्रशासन से भी हेल्प मांगी। सारा करने के बाद में आज अलीगढ़ में 62 बेटियां हैं कुश्ती की, जो राष्ट्रीय स्तर तक खेलने जा चुकी हैं, आप देखिए। और दैट्स अमेजिंग जी, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनमें से एक बेटी जरूर जल्द ही जल्द कोई अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी खेलने जाएगी। तो मुझे इसीलिए तो मैंने अदर गेम्स भी, जैसे गांव में कबड्डी भी, खो खो भी, मार्शल आर्ट भी, अदर गेम्स में भी ऐसे ही मैंने बहुत मेहनत करके बेटियों को आगे लाने का जो मैं कार्य कर रही हूँ, जुड़ के वहां की सब लोगों का मुझे बड़ा सपोर्ट है, पर मैं अकेले वाकई में कुछ नहीं कर पाती, ये भी सच है। लेकिन वहां का प्रशासन भी, और वहां के लाइक साजिदा मैम एंड अदर और भी जैसे एसोसिएशन भी हैं जो खेल कूद की, अदर और लोग भी मुझे थोड़े थोड़े सपोर्ट करते हैं, तो मेरी भी हिम्मत पड़ती है। नहीं तो देखिए मैं शहर आ चुकी हूँ, दिल्ली आ चुकी हूँ, सुप्रीम कोर्ट में हूँ, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन जिस मकसद से मैं वहीं पीछे लौटती हूँ कि जिस मकसद से मैंने पढ़ाई की थी और जो मैंने प्रण लिया था, उस प्रण को पूरा करने के लिए मैं दिल्ली से अलीगढ़ जाती हूँ, और अलीगढ़ से गांव में जाती हूँ, उन बेटियों को आगे लाने के लिए, उन बालिकाओं को आगे लाने के लिए जो सुविधाओं के अभाव में, अवेयरनेस के अभाव में, और मतलब सपोर्ट के अभाव में
जैसे देखिए, माता पिता भी डरते हैं और उनका डर भी सच्चा होता है, मैं ये कहूंगी कि भाई बेटी आगे जा रही है, तो जब वो खुद सक्षम नहीं है, डर बिल्कुल सच्चा है उनका भी। तो सपोर्ट के अभाव में जो आगे नहीं आ पाती हैं, मैं उन्हें लोकल खेलों के थ्रू उनको आगे लाके और अपने समाज का, अपने ग्रामीण क्षेत्र का, अपने शहर का और अब फिर बाद में अपने देश का नाम करना ही मेरा लक्ष्य है। उस पर मैं आप लोगों का और भी सपोर्ट चाहती हूँ। तो साजिदा मैम, सपोर्ट करते रहिएगा। श्योर, थैंक यू। हमारा सपोर्ट आपके साथ है और आपके इस नेक जज्बे को सलाम गीतांजलि मैम। ओवर टू यू मरियम। Okay, so my next question is to Miss Rubina. What is actually the driving force for your business, for your TAP creation? Where did you got your inspiration from? See, like I told you earlier, my driving force, basically, my first driving force was the thought that I have to be home for my child. Secondly, then when I started, looking around what I can do, like I said कि मेरे आसपास बहुत सारी लड़कियां थी जो ये काम करती थी और मेरे बहुत फ्रेंड्स भी थे जो इन सब काम में थे. So from there I got my inspiration कि I can do, I can promote this art. इनिशियली तो मैं बहुत ज्यादा अवेयर नहीं थी कि हाउ टू गो अबाउट इट, तो देयर वर लॉट ऑफ हर्डल्स, बहुत सारी गलतियां भी हुई, बहुत सारा नुकसान भी उठाया, बट इट्स अ जर्नी. मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे यू स्टार्ट लर्निंग. बहुत सारे हर्डल्स आए, मैंने फिर आई स्टार्टेड मेकिंग माई ओन स्टफ, फिर आई स्टार्टेड डूइंग एग्जीबिशंस, बहुत मेहनत करी और बहुत सारे फिर मतलब मेरा काम बढ़ता गया है, मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ काम करना शुरू करा. So then there were a lot of personal setbacks also, but then that didn't stop me because मैं अगर काम रोकना भी चाहती थी तो मेरे साथ इतनी लड़कियां जुड़ी हुई थी, इतने सारे लोग मेरे साथ काम करते थे कि फिर मुझे ये लगता था कि अगर मैं काम बंद कर दूंगी या मैं अगर कल को काम नहीं दूंगी तो what will happen to them, उनका घर कैसे चलेगा. So there were a lot of girls who were dependent upon me. और मैंने जो है वो शुरू से मतलब जब भी मैंने और लड़कियों के साथ जब मैंने काम करना शुरू करा तो मैंने यही उनसे जब बात करी, when I interacted with them, तो मुझे ये लगा कि मतलब they are not getting their worth. बहुत मेहनत का काम है ये जो पत्ती का काम है, it's not easy. छोटी छोटी पत्तियां बनाती हैं, एक एक पत्ती में 8-8 टाके लगाते हैं अपने, मतलब दिन रात मतलब आंखें जो है उनकी खराब हो जाती हैं, अंधेरे में काम करते हैं. ऑब्वियसली इन लोगों के घर में ऐसे नहीं होते कि बहुत ही वेल लिट होते हैं या बहुत अच्छे उसकी जो है वो सराउंडिंग्स होती हैं. तो बहुत दिस इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत आसान काम है. तो मुझे ऐसा लगा कि दे आर नॉट गेटिंग देयर ड्यू. तो मैंने हमेशा से मेरा यही रहा कि मैंने कभी भी मतलब आई ऑलवेज गेव देम व्हाट दे वांटेड. मतलब मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि ये तुम बनाओ और दिस इज द मनी दैट आई एम गोइंग टू गिव यू. मैंने हमेशा बोला कि तुम बना के लाओ और तुम बता देना कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए एंड आई विल पे यू. That's how I've always worked and that's how, इसीलिए हमेशा मेरे साथ जो है वो लड़कियां जुड़ी रही. अभी भी मतलब जो लड़कियों की शादी भी हो गए, they always remember me कि हाँ आप हमेशा मन चाहे हमें पैसे देती थी. So that was, then initially it started with this thing and then it became a passion for me to do something for them and that's it, I think. Yeah, that's an amazing thought and I think शायद इसी को women empowerment कहते हैं कि अपनी कितनी भी पर्सनल प्रॉब्लम्स आई लेकिन आप कभी पीछे नहीं हटी. आपने हमेशा यही कोशिश करी कि जो और लोग मुझसे लिंक्ड हैं, जिनकी इनकम मुझसे मेरे थ्रू जा रही है, उनका कोई लॉस नहीं होना चाहिए. दैट इज एन अमेजिंग थॉट. और शायद इन्हीं सब और आप जैसे लोगों को, जैसे आज आपके इंटरव्यू को लोग देखेंगे तो पीपल विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंडक्राफ्टेड स्टफ. और ये बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज जिस चीज में मेहनत लगती है, जो जद्दोजहद से बनाई जाती है, उसकी बहुत जरूरत है कि लोगों को पता चले कि दिस इज नॉट अ मशीन मेड वर्क जो आपको इजीली मिल जाएगा. तो वो मेहनत की वैल्यू और मेहनत लोगों को दिखेगी. आई एम श्योर पीपल विल अप्रिशिएट दैट. थैंक यू सो मच. ओवर टू यू मिस साजिदा जी. रुबीना जी, मैं भी बस इतना ही कहूंगी कि जिस नेक जज्बे के साथ आप काम कर रही हैं तो और मेहनत आपकी पूरी तरीके से, आप मेहनत और लगन के साथ लगी हुई हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता और आप जैसे लोग इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन गीतांजलि मैम से है. तो गीतांजलि मैम, सर आप हमें ये बताइए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में आप किस तरीके से सहभागिता दे रही हैं, किस तरीके से आप इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं?
देखिए साजिदा मैम, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रोजेक्ट है जो उन्होंने 22 जनवरी 2015 को इसको उन्होंने शुरू किया, 100 करोड़ के अमाउंट के साथ में शुरू किया है। लेकिन देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि हर जगह वो चीजें पहुंचना संभव नहीं है। तो क्योंकि जी, तो मैंने, जैसे कि मैं अपने क्षेत्र के लिए काम कर रही हूँ, मैं अपने उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रही हूँ, तो मैंने उसमें अपनी तरीके से जैसे डिसाइड किया, जैसे वहां पर मैंने एक हमारी एक संस्था है जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ, मानव संकल्प वेलफेयर सोसाइटी, तो उसको साथ में लेकर और उनसे मैंने एक बेटी प्रतिभा खोज अकेडमी बनवाई जो गांव क्षेत्र में है, इगलास क्षेत्र में है। एंड दूसरी जैसे अलीगढ़ में शुरू किया मैंने बेटी खेल रत्न अवार्ड, जो मेरे माता पिता के नाम से दिया जाता है, जिसमें कैश अवार्ड भी है। कैश अवार्ड देखिए बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट नहीं होता है, जैसे पहला अवार्ड है वो 51,000 का है, नो इट्स अ नॉट बिग अमाउंट, बट उतना है कि किसी एक की कुछ एक मदद जरूर हो सकती है। एंड उसमें 10 अवार्ड हैं, जैसे कैश अवार्ड जो 10,000 का हम लोग करते हैं, तो उसमें ये एक छोटा छोटा अमाउंट से एक छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन देने के बाद, एंड जैसे ये छोटी छोटी चीजें शुरू करके ऐसा महसूस होता है कि देखिए, कहते हैं ना, मदद तो थोड़ी सी भी, कहते हैं ना, तिनके का सहारा ही काफी होता है। तो वो एक छोटी छोटी मदद करके आगे मैं बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। और यहाँ से जैसे जो भी सरकार की जो भी सुविधाएं हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी से है, चाहे आपका खेलो इंडिया से है, चाहे आपका फिटनेस इंडिया से है, जो भी है, मैं उन तक, वहां की बेटियों तक पहुंचाने का उसमें प्रयास कर रही हूँ, प्रयासरत हूँ पूरी तरह से कि भाई जैसे छोटी छोटी सुविधाएं उनके लिए पहुंच सकें। जैसे एक सेंटर के लिए अभी कोशिश की है बेटियों के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी से, जो कुश्ती एंड वेट लिफ्टिंग के लिए अंडर प्रोसेस है अभी। एंड देखिए, इस तरह से छोटा छोटा मैं करने के लिए एक वहां पर एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, नेशनल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की भी वहां पर अभी भूमि पूजन कराया है, इसका मैं बताऊंगी आपको अभी, तो वो कराया है। तो उससे मुझे छोटी छोटी अपना एक कंट्रीब्यूशन दे के बेटी हूँ, और कुछ जितनी भी बेटियों को मैं अगर सुविधा दे पाऊंगी, अपनी तरफ से कर पाऊंगी, चाहे खुद से, चाहे किसी के वहां पर सपोर्ट से, चाहे संस्था हो, चाहे किसी के से भी, तो वो मैं उस तरह से कोशिश कर रही हूँ, अपनी एक प्रयास कर रही हूँ कि वह बेटियों के लिए काम कर सकूं। बहुत अच्छे। और आपके प्रयास जो हैं वो बहुत ही आगे जाकर बहुत कुछ कर दिखाने वाले हैं, और आप जो प्रयास कर रही हैं उसमें बहुत कामयाबी मिलने वाली है आपको, क्योंकि आपके जो प्रयास हैं वो बहुत सक्रिय प्रयास हैं। तो नेक्स्ट टू यू। और वाकई मैं एक चीज ये ऐड करना चाहूंगी कि वो कहते हैं ना कि नियत साबित तो मंजिल आसान। अभी आपने कहा कि आप छोटे छोटे इनिशिएटिव ले रही हैं मैम, अगर आप मेरी नजर से देखें तो आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं। आप सक्सेसफुल हैं, आप आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन आप अभी भी अपनी रूट से जुड़ी हुई हैं। और आप वाकई जो आपके विलेज में लोग हैं उनके बारे में, अलीगढ़ की लड़कियों के बारे में और यूपी की लड़कियों के बारे में अगर आप सोच रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और वी ऑलवेज प्रे कि आपको आपके मकसद में हमेशा ऐसे ही कामयाबी मिले। वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू। So, Ms. Rubina ji, the next question to you. Since you work mainly with women Karigar, you just told us, so do you face any kind of problem because you're dealing with females who come from poor families? So do you face any kind of challenges dealing with them? Do they share any kind of problem when they are coming to work? Oh yeah. You always have to be an ear when you work with them. हमेशा ही, मतलब more or less, because या तो they always have, मतलब what I have seen is कि ये जो भी कारीगर हैं या जो भी लड़कियां जो काम करती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनके हस्बैंड्स जो हैं वो कुछ करते नहीं हैं। तो जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर जो फाइनेंशियल बर्डन होता है वो इन औरतों पर ही आ जाता है। इसीलिए मुझे और भी लगता था कि चलो आई शुड सपोर्ट देम एज मच एज आई कैन।
Secondly, matlab, definitely because mostly I was working here in Thora, and I had a lot of कारीगर्स, उनके बहुत सारे देवर बच्चे होते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, प्लस मतलब बहुत ज्यादा बीमारी हो गई, बहुत ज्यादा बीमार, बिकॉज ऑब्वियसली द काइंड ऑफ सराउंडिंग्स ये लोग जिसमें काम करते हैं, तो ये बीमार बहुत हो जाते हैं, बच्चे बहुत होते हैं, या फिर अब्यूज बहुत होता है कि वो आज हस्बैंड ने मारा या सास ने मारा, या ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, तो बहुत हैंगअप्स होते हैं कि आज हम काम नहीं कर पाएंगे, या अब हमारा लेट हो गया क्योंकि हमारा बच्चा बीमार है, या मतलब मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, या कुछ इस तरह के इश्यूज जो है वो बहुत ज्यादा रहते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं, बट वही है कि दैट्स हाउ इट इज, मतलब परेशानियों के साथ ही काम करना है, एंड दैट्स हाउ यू हैव टू गो अहेड। तो बस ये है, मुझे लगता है कि यही सारी परेशानियां बहुत हैं फीमेल्स के साथ काम करने में। प्लस ये है कि एजुकेटेड नहीं होती थी, तो अगर मैं कहती भी थी कि अपना हिसाब लिखो, ये लिखो, वो लिखो, तो उन लोग से नहीं आता था करना। ये सारे इश्यूज भी बहुत होते थे, कभी कभी बहस भी हो जाती थी, उनको नहीं याद रहता था कि हाँ how much I've paid them, how much they've worked. Plus, that's it, I think. Yeah. तो were their families supportive? क्या उनके families को पता होता था कि वो काम करती हैं? बहुत ज्यादा बिकॉज घर में ही काम करती थी, तो ऑब्वियसली वो उधर हाइड तो नहीं कर सकते थे, लेकिन हाँ बस अब आए दिन ये जरूर होता था कि हाँ हस्बैंड से पिट कर आ रही है या सास से लड़ कर आ रही है, बिकॉज काम करती थे, तो फिर ये कि घर का काम कहीं ना कहीं ऑब्वियसली वो डिले हो गया या निग्लेक्ट हो गया, तो इस वजह से जो है वो अक्सर ही ऐसा होता था कि वो बीच में काम छोड़ दिया उन्होंने, या बीच में आके कह लेंगे कि दीदी अब हम काम नहीं कर पाएंगे, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं कि तुम पूरा वक्त यही करती रहती हो, घर पे ध्यान नहीं देती हो, बच्चों पे ध्यान नहीं देती हो। फिर ये होता था कितनी बार आई हैव टू, मैं उनके हस्बैंड अगर बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती थी, झगड़ा हो जाता था, कितनी बार बुलाती थी, फैमिली में जाती थी, खुद जाती थी, सॉल्व करने की कोशिश करती थी, फिर समझाती थी कि भाई तो आप जो है नहीं कर रहे हैं, आपकी वाइफ जो है वो ऑब्वियसली मतलब कर रही हैं, आपको सपोर्ट करना चाहिए। और बहुत ऐसा नहीं है, जो मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरे साथ जुड़ी रही, दे हैव डन रियली वेल इन लाइफ, मतलब ऐसा नहीं है, काम करके साथ में बहुत तरक्की भी करी है, बहुत बड़ी भी है आगे। एक लड़की है मेरे साथ शुरू में जुड़ी थी, उसका नाम भी रुबीना ही था, आई वुड गिव एन एग्जांपल, एंड उसके 5 बच्चे थे, और फिर मैंने बहुत उसको सपोर्ट किया, बिकॉज उसका हस्बैंड जो है वो कुछ ऐसा खास करता नहीं था, उसके बच्चों को हमने पढ़ाया भी, उसके लिए बाकी भी काफी कुछ करा। अभी माशाल्लाह से मतलब शी हैज अ वेरी ह्यूज हाउस, उसका 3 स्टोरी घर है, उसके बच्चे पढ़ गए, दे आर डूइंग वेल इन लाइफ। तो खैर बहुत साल हो गए, 15-20 साल हो गए उससे ऑलमोस्ट एसोसिएट हुए हुए। तो ऐसे भी हैं, मतलब पीपल हु हैव बीन एसोसिएटेड विद मी हैव डन वेल इन लाइफ। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत अच्छा लगता है जब देखते हैं उनको कि वो आगे बढ़ गए, एंड they've come a long way. बेसिकली एक्चुअली अवेयरनेस की बात है, बिकॉज चाहे वो लड़कियों को स्पोर्ट्स में डालना हो, या कोई वर्क कराना हो, या कोई बिजनेस या जॉब करानी हो, अवेयरनेस एंड एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Yes, it is definitely. सो गीतांजलि मैम, हमने आपके इतने सारे अचीवमेंट्स, इतने सारे प्रोजेक्ट्स, आप इतना सारा काम कर रही हैं, अभी हमने सब चीज सुनी। एंड मैम, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से आप ग्रामीण बहनों को और यूपी की विमेन को कोई संदेश देना चाहती हैं, कोई मैसेज देना चाहती हैं? तो हम ये आपको जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो मेरा प्रण है, वो उसके अनुसार जैसे जैसे मैं चल रही हूँ आगे, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगी आपको 2-3 चीजों के, आपको खुद भी बड़ा अच्छा फील होगा। और मैं जब भी जैसे मैं काम करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, शायद मैं अपने लिए कर रही हूँ, ये मैं दूसरों के लिए नहीं कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ। मुझे जो खुशी मिलती है, जैसे मैं आपको बताऊं, आप कानपुर की रहने वाली हैं, तो मैं आपको बताऊं, जैसे कानपुर में मैं गई थी 2018 में गई थी मैं एशियन गेम्स के लिए, शायद पता नहीं कोई गेम के लिए तैयारी चल रही थी, तो मैं गई थी वहां, बच्चों वॉलीबॉल की बच्चियों के लिए गई थी। तो इतना ज्यादा बेटियां वहां पर इकट्ठी हो गई और बोलती हैं कि नहीं, मतलब सिर्फ एक ही उससे कि गीतांजलि दीदी आई हैं। तो मतलब उनको तो उनको इतना अच्छा कम लगा होगा, वो दौड़ दौड़ गई, लेकिन उनसे ज्यादा खुशी मुझे मिली कि नहीं, बेटियों को मेरी जरूरत है और वो मुझे ढूंढ रही हैं। ऐसे ही मैं मेरठ गई, मैं
ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ अपने अलीगढ़ देहात के ही कई क्षेत्रों का बताती हूँ मैं आपको। मैं एटा भी गई, एटा में भी खो खो की बेटियों ने मुझे इतना तक कहा कि नहीं मैम, कुछ कुछ लोग ना हमें परेशान भी कर रहे हैं, तो मैंने उनके लिए कानून की लड़ाई से भी मैंने उनको मदद की। बहुत अच्छा। ऐसे ही मतलब काफी सारी जगहों पे जब भी मैं गई हूँ, अतरौली एक जगह है अपने यहाँ अलीगढ़ के आसपास ही है, मैम साजिदा जानती हैं, मैं जी जी वहां पर बिल्कुल। गई। हाँ, तो वहां पर वो गवर्नमेंट स्कूल की जो जितनी बालिकाएं थी, उनकी प्रिंसिपल हैं मैम शशि कपूर, उन्होंने खुद कहा मुझे, कहती हैं कि ना आपका जितना हमारी बच्चियां पढ़ती हैं, आए दिन आपका देखती हैं और पढ़ती हैं, हमारी बेटियों ने रिक्वेस्ट किया है कि गीतांजलि दी को बुलाया जाए और हम उनसे सुनना चाहते हैं कि हम लोग कैसे ऐसे कर पाएंगे। मतलब आई फील, मतलब मैं कहते हैं ना, खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि वो सही खुद बात है। भी, हाँ, कि वो इंकरेज ये हुई कि वो मेरी तरह दूसरों के लिए कैसे कर सकती हैं। ऐसे ही अग्रसेन इंटर कॉलेज है जो हरदुआगंज में है, मैं उनके यहाँ मुझे इनवाइट किया गया अपनी बच्चियों को इंकरेज करने के लिए, क्योंकि हरदुआगंज रूरल एरिया में आता है। तो उन्होंने वो जिस तरह से वो ऑटोग्राफ लेने के लिए मुझे आज भी याद है, एक छोटी सी फोटो है, बच्चियों ने, और कहती है मुझे, हमें ना अपना नंबर दे दो और हम ना आपसे पूछा करेंगे, हमें जो है कि कैसे करना है, और कोई प्रॉब्लम आएगी और हमें कोई परेशान करेगा ना तो हम आपसे पूछेंगे। तो मतलब छोटी छोटी ऐसी ऐसी बातें जब मैं जाती हूँ वर्क करने के लिए, मतलब ये चीजें मुझे मजबूर करती हैं उल्टा के मैं वहां जाऊं, उनको मेरी जरूरत है। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब मुझे, देखिए मुझे बहुत वर्क होता है यहाँ पर, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, भारत सरकार की सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल हूँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी देखती हूँ, खेलो इंडिया की भी मैं लीगल एडवाइजर हूँ, अकेली हूँ जो मैं ये देखती हूँ। तो आप सोचो मेरा क्या शेड्यूल रहता होगा। मेरे परिवार वाले ना मुझसे हमेशा नाराज रहते हैं, हमेशा कहते हैं कि ना हमारे लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तुमने सिर्फ जन्म जो लिया है वो समाज के लिए लिया है, हमारे लिए तो तुम हो ही नहीं। मतलब एटलीस्ट कई बार ऐसा हुआ है कि ना मेरी जो भाभियां हैं, मेरे जो भाई हैं, मेरी मदर, मतलब मैं छोटा सा एक ऐसा उदाहरण बताऊं, जब मेरी माँ थी तो एक दिन ना वो रात को 2 बजे मेरे जैसे पलंग के वो बैठी हुई, साथ में बैठी हुई, सडनली मेरी जब नींद खुली, मैं एकदम से उठ के बैठी, हमने की अम्मा, मेरी मदर को अम्मा बोलते हैं हम, अम्मा क्या हुआ? कह रही बेटे वैसे तो तुझे टाइम होता नहीं है, तो मैंने सोचा कि बेटी जग जाएगी ना, मैं तो बात करनी है मुझे अपनी बेटी से, 4 दिन से बेटे बात नहीं हो पाई है। मतलब वो मैं आपको पल बता नहीं सकती कि मेरा मन कितना मतलब भर आया होगा कि मेरी माँ को मेरे लिए 4 दिन से वो मुझसे बात नहीं कर पाई हैं, और वो किस तरह से बेचैन है कि वो मुझसे 2 मिनट बात कर पाएंगी। मतलब इतना तक था, इतनी मैं शेड्यूल में रहती हूँ, मैं इतना बिजी होती हूँ, उसके बावजूद भी मैं क्योंकि मेरा प्रण है कि मुझे करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए, जब तक मेरी जान जिंदगी, जब तक हूं मैं कि मैं दौड़ सकती हूँ, चल सकती हूँ, मुझे बेटियों को उस क्षेत्र, मतलब उस लेवल पे लाना है मुझे, जहां वो, जैसे हमारे यहाँ आज भी देखिए बेटा बेटी में, आज भी गांव में आप चले जाइए, शहर में देखिए अच्छा है ठीक है, लेकिन गांव में आज भी चले जाइए, बेटा बेटी में आज भी गांव में फर्क किया जाता है। फर्क की वजह अलग है कि वो डरते हैं अपनी बेटियों के लिए माहौल की वजह से, लेकिन फर्क आज भी, देखो वजह कोई भी हो, लेकिन आज भी बेटा बेटी में फर्क होता है। और बेटियों के लिए आज कानून की पढ़ाई है, जैसे तो कानून की पढ़ाई भी हमारे यहाँ आज भी देखिए दूर दूर कॉलेजेस हैं, गांव की बेटियां कैसे पढ़ने जाएं कॉलेज में, बड़ा मुश्किल चीजें हैं। जैसे खेलकूद में ही आप ले लो, स्टेडियम में कैसे जाएं वो, कि इतनी दूर खेलने के लिए, तो वो दूर जाना भी माता पिता की समस्या हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी उस दिन का इंतजार कर रही हूँ और उस दिन के लिए मेहनत कर रही हूँ जब वो बेटा बेटियों को बराबर पे लाके ये होगा कि भाई हाँ, उनको भी समान आज अधिकार से, जो पुरुष वर्ग के साथ खड़े होके वो आगे चल रही हैं, बराबर चल रही हैं, उस दिन मेरा सपना सच में ही साकार होगा, और उस दिन मुझे लगेगा कि हाँ मैं अपनी बहनों, अपनी बेटी, अपनी मातृशक्ति के लिए कुछ कर पाई, उस दिन मुझे लगेगा।
बिल्कुल मैम, हमें आप पे गर्व है एंड वील प्रे कि आप जो भी विश करती हैं, जो आप चाहती हैं, वो आपको बिल्कुल मिले। और वाकई कुछ लोग सच में समाज के लिए ही जन्म लेते हैं, जो वाकई कुछ ऐसा करके जाते हैं जिसको लोग सदियों तक याद रखते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि आपने अब तक भी ऐसी एक मिसाल कायम करी है और आप आगे भी करेंगी। ओवर टू यू मिस साजिदा जी। गीतांजलि मैम, ऑटोग्राफ तो हम भी आपका लेना चाहेंगे, क्योंकि आप जैसी पर्सनालिटी राइट। ने आज हम लोगों के लिए इतना टाइम निकाला, ये बहुत बड़ी बात सही है। बात वाकई आप बहुत बिजी रहती हैं, और इसके बावजूद आप लोगों ने ये इतना टाइम निकाला ताकि और लोग इंस्पायर हो सके आप जैसी पर्सनालिटी से लिए। ये तो उसके लिए हम वाकई आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद मिस रुबीना। व्हाट चैलेंजेस एज अ वुमन you face in your business? As a woman personally, मुझे बस ये लगता है कि not really, मतलब what I would say the opposite, कि being a woman has been an advantage for me, not a disadvantage. Definitely, कहीं ना कहीं तो आपको जो एक बेसिक सभी आई थिंक हम सभी लड़कियां फेस करती हैं कि कहीं आप जा रहे हैं, so then there are people who look at you and all that, but as a मैं कहूँगी बिजनेस करते में ऐसे मुझे नहीं लगा, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मैं नहीं बोलूंगी कि मुझे बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े या बीइंग अ वुमन मेरे लिए बहुत ड्रॉबैक रहा। मैं ये बोलूंगी कि बीइंग अ वुमन वाज एन एडवांटेज ऑन माय साइड, इट ऑलवेज हैज बीन। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब जब लोगों को अपना टैलेंट दिखाती हूँ, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। या मैं पहले जब मैं शुरू में जब मैं करती थी 2004 में जब मैंने स्टार्ट किया, तो मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं एक्सपोर्ट हाउसेस का काम करती थी दिल्ली में, और मैं जो हूँ वो अपने सैंपल्स लेके जाती थी, एंड पीपल ऑलवेज यूज्ड टू ट्रीट मी विद रिस्पेक्ट। ऐसा कभी मैंने नहीं फेस किया कि मुझे बहुत मतलब गलत नजर से देखा गया हो। थैंकफुली आई हैव बीन लकी प्रॉब्ली इन दैट वे कि मैंने कभी उस तरह के बहुत मेजर चैलेंजेस फेस नहीं किए। हाँ, पर्सनली डेफिनेटली जैसे अब होता है कि अगर कोई लड़का है तो उसको मतलब अगर रात बिरात भी आ रहा है तो वो डरेगा नहीं, बट बीइंग अ वुमन हाँ वो थोड़े बहुत चैलेंजेस वो एज अ वुमन आई थिंक वो हम सभी फेस करते हैं। बट हाँ, प्रॉब्ली बिजनेस करते हुए मुझे ऐसे नहीं लगा, मुझे हमेशा लगा कि बीइंग अ वुमन वाज ऑलवेज ऑन माय साइड। लोग आपको बहुत ही रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं, और कैसे कहूँ कि मतलब आपको लेवरेज देते हैं फॉर बीइंग अ वुमन, यू गेट दैट लेवरेज, व्हाट आई फील। तो यस, being a woman has not been a disadvantage for me. Being a woman has always, it has played on my side, I would say that. You are lucky enough, Rubina. Over to you, Mariam. Thank you. Yeah, that's what I said. I've been lucky that way. कि बहुत challenges मुझे face हैं। गीतांजलि मैम जी, अभी हमें आप पे बहुत गर्व है, आपने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल हैं। लेकिन हम कहते हैं ना कि हम आपकी जबान से ये चीज सुनना चाहते हैं कि आप को अपने लिए ऐसा कब लगा कि वो सबसे ज्यादा आपके लिए खुशी का पल जब आपको एक महिला होने पे बहुत ज्यादा गौरव प्राप्त हुआ हो? तो आप थोड़ा सा उसके बारे में रोशनी डालिए। देखिए मैं 96 से काम कर रही हूँ, और बहुत मेहनत और बहुत संघर्ष किया है मैंने अपनी लाइफ में। मेरी बहुत, जब मैं 10th क्लास में थी मेरे फादर नहीं रहे, मेरी माँ थी जो मेरे लिए माता पिता दोनों बनी, एंड मेरे 4 भाई हैं, चारों भाइयों मेरे बिल्कुल लाइक ऐसे कि मैं उनका भाई ही हूँ बड़ा। मुझे मेरे परिवार ने ऐसा सपोर्ट दिया हमेशा, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं एक लड़की हूँ। अपने परिवार से, अपने समाज से, और अपने परिवार की तो मैं अपने परिवार की ही नहीं, अलीगढ़ की और यूपी में भी मुझे बहुत जगह से ऐसे वो मिला है सुनने को कि मैं एक आइडल हूँ उनके लिए, एक उनके लिए ऐसे हूँ जैसे सोचते हैं सपनों में लोग कि ऐसा होना चाहिए, तो मैं उनके लिए वो बेटी हूँ, आदर्श हूँ, आइकन हूँ, ऐसा सोचते हैं। तो वो मुझे बहुत मिलता रहा है। लेकिन जो एक मेरी जो खुशी का पल का जो आपने बात की, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे सभी जानते हैं इस बात को, अलीगढ़ क्षेत्र में रहने वाले और यूपी क्षेत्र के रहने वाले भी, और राष्ट्रीय लेवल पे भी लोग जानते हैं। ये मेरी प्रेरणा स्रोत रही मेरी माँ, माताजी प्रेमवती शर्मा। उनके नाम से जब मैंने बेटियों के लिए और वहां के उन जो है बालिकाओं के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में ही जो है वो मैंने उनके नाम से राष्ट्रीय स्तर का
यानी माताजी प्रेमवती शर्मा नेशनल मैनेजमेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की नींव जिस दिन रखी गई, 25 दिसंबर 2019 को उसकी नींव रखी गई। कमिश्नर साहब अलीगढ़ के श्री अजयदीप सिंह जी ने उसकी नींव रखवाने में मेरा बहुत सपोर्ट किया, और अलीगढ़ शहर की हर उस इंसान ने मेरा सपोर्ट किया जिसके लिए मतलब जो मेरा एक, जब अगले दिन एक टाइटल आया न्यूज़पेपर में जिसमें था कि पहले राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की रखी गई आधारशिला, खिलाड़ी गीतांजलि शर्मा का सपना हुआ साकार। तो वो जिस दिन नींव रखी गई और जब मुझे ये लगा कि अब मैं प्लेटफॉर्म दे पाऊंगी उन बेटियों को जो जिसके लिए मैंने बरसों बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है, और जो इंस्टीट्यूट मेरी माँ के नाम से बन रहा है, जो मेरी प्रेरणा स्रोत हैं, तो मुझे वो दिन आप समझिए कि मैं मतलब अभी भी मेरा मन भर आके बार भर रहा है। मैं ठीक से आपको बता नहीं पा रही हूँ, मतलब मन भर गया आया है एकदम से। वो मेरी खुशी का सबसे बड़ा पल और मेरी पूरी जिंदगी की, शायद ऐसे समझो कि शायद कहते हैं ना किसी का भगवान फल देते हैं, तो शायद वो एक फल मेरी एक इच्छा और मेरी एक खुशी, वो मेरी सबसे बड़ी खुशी, तो वो मतलब मेरा पूरा हुआ, और जिससे मैं आगे चल के उन बेटियों को, उस मातृशक्ति को वो दिशा देने में आगे बढ़ पाऊंगी, जो कि जैसे उनको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से मैं उनको आगे बढ़ाने में सक्षम शायद बन पाऊं अब, जो मैंने एक संकल्प लेके चली थी। तो वो मेरा संकल्प शुरू हो गया, नींव रखी जिस दिन, तो वो मेरी बहुत बड़ी खुशी का पल है। थैंक यू। That's awesome, ma'am. Wonderful. We are elated to have you. मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई। आप उन लड़कियों के साथ साथ आप आज से मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। लाइफ में जब मैं भी कभी थकूंगी या मुझे लगेगा कि बहुत ज्यादा लोड है, तो मैं डेफिनेटली आपके बारे में सोचूंगी और मुझे लगेगा कि मैं एक बार किसी ऐसी लेडी से मिली थी जिसने हजारों काम कर डाले लेकिन वो कभी थकी नहीं। मैम, हमें गर्व है कि आप जैसे लोग हैं अभी भी इंडिया में, एंड वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। वाकई थैंक यू सो मच। वेल सेड डॉक्टर मरियम, एंड आई एम टोटली एग्री विद यू कि वाकई हम जब कभी जिंदगी के किसी भी मोड़ के ऊपर थकते हैं तो हम गीतांजलि मैम जैसे लोगों से इंस्पायर होते हैं और सोचते हैं कि जब वो बीइंग ए लेडी ये इतना सब कुछ कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वाकई आप हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। अब ये मेरा लास्ट क्वेश्चन आप दोनों ही गेस्ट से है, तो सबसे पहले गीतांजलि मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज योर मैसेज and advice to the young girls and women of Uttar Pradesh? First you, Gitanjali ma'am. जी, मैसेज तो देखिए, मैसेज क्या, मेरा बस एक निवेदन करूंगी अपनी मातृशक्ति से, अपनी बेटियों से, उन महिलाओं से जो समाज में बढ़ के काम करने का एक जज्बा रखती हैं, वो अपने जज्बे को खोने न दें किसी भी परिस्थिति में। परिस्थितियां देखिए, जब भी कोई आप अच्छा काम करते हो तो आपको, जब आप चलने लगते हो तो आपको सबसे ज्यादा रोकने वाले लोग होते हैं, लेकिन मैं उस चीज को ही बड़ा मानती हूँ। जैसे मुझे भी बहुत रोकने की कोशिश की गई, तो जितना ज्यादा मुझे रोकने की कोशिश की गई, मैंने उतनी ही ताकत आगे बढ़ने के लिए लगाई। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि जब भी आपको रोका जाए, कोई आपको परेशान करे, आपको रोकने की कोशिश करे, आप पे कमेंट करे, आपके लिए बुरा बोले, तब आप ये समझ जाना कि नहीं, आप कुछ अपने समाज के लिए करने जा रहे हो जिसके लिए आपको रोका जा रहा है। अपने लिए करोगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। तो मैं मैं आपको बताऊं, हमारे अलीगढ़ शहर में भी जैसे साजिदा मैम को मैं बहुत ही ज्यादा, इसलिए नहीं कि आज हम लोग इकट्ठे ये सब कर रहे हैं, वैसे भी मैं इनको बहुत मानती हूँ, बिकॉज ऑफ के देखिए, ये अकेली ऐसी अलीगढ़ की एक महिला है जो, देखिए, एक मुस्लिम उससे आना
और हमारे हिंदू समाज में तो फिर भी बेटियों को बहुत आजादी बहुत टाइम से दी जा रही है, लेकिन आपके समाज में जिस तरह आपको आजादी कम है, उसके बावजूद भी आप लगी रहती हैं सीरियसली। मैं बहुत इम्प्रेस होती हूँ आपसे। एंड आपसे भी मैं कहना चाहूंगी कि आप जो कुछ भी कर रही हैं, और जो भी मैं रुबीना जी को सुन रही हूँ अभी, देखिए आसान नहीं होता, वोमेन के लिए बिजनेस बिल्कुल आसान नहीं होता है। एंड एक समाज में एक जगह पाना कि जब लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, वो बहुत बाद की स्टेज है, लेकिन शुरू की स्टेज में लोग आपको नेगेटिव ही करते हैं, लोग आपको डिमोट ही करते हैं, डिमोलाइज ही करते हैं। लेकिन उन सब परिस्थितियों को आप इग्नोर करते हुए और अपनी पूरी श्रद्धा, पूरी सच्ची इच्छा शक्ति से जब भी आप आगे बढ़ते हो ना, तो आपके गोल को, आपकी इच्छा को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। खुद भगवान भी, खुद ऊपर वाला भी कहता है कि नहीं। And I have seen that in my personal life and everywhere. Hard work will always pay you. हमेशा in the end. जी, एक रामायण में हमारे एक चौपाई है, मैं छोटी थी पढ़ा करती थी, मुझे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का बहुत शौक है, और सेम चीज सारे धर्मों में कही गई है। वो जो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, संस्कृत का श्लोक है वो। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। यानी जो जैसा करता है वैसा भरता है। तो बुरा करता है इंसान, बुरा भरता है, और अच्छा करता है तो उसका एक न एक दिन प्रतिफल जरूर मिलता है। तो मैं आप जैसी महिलाओं को और उन सभी महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि अपनी पूरी इच्छा शक्ति से लगे रहिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता, और उनको मेरी कहीं भी कोई भी जरूरत मेरी जिसमें मैं करने में मैं पूरी ताकत लगा दूंगी, और मैं सक्षम हूँ उसके लिए। मैं मुझे 24 आवर, जैसे एक होती है ना हेल्पलाइन 24 आवर, तो आई एम such a pleasure to hear you. I am your helpline, 24 आवर हेल्पलाइन। मैं खड़ी हूँ आपके साथ, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, कहाँ कर सकती हूँ, ये आप मुझे 24 आवर में जब भी मुझे बोला जाएगा, मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ, उन सभी के साथ खड़ी हूँ जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और अपने देश के लिए जो खड़ी हैं, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। सो पूरी सच्चा श्रद्धा शक्ति से लगे रहिए, आगे बढ़ो, आपकी जरूर पूरी इच्छाएं होंगी। थैंक यू गीतांजलि मैम, बहुत ही अच्छी बात आपने कही और इतनी हौसला अफजाई की है आपने कि अब शायद हमारे पास जो है फोन आने लगेंगे आपके नंबर के लिए। तो 24 का जब आपने वादा किया है तो 24 आपको देने भी पड़ेंगे। और आपको सुनकर लोगों में इतनी प्रेरणा जागी है, इतने इंस्पायर हुए हैं लोग आपको सुनकर। वाकई आज का दिन हमारा जो है, जिसे कहना चाहिए कि सफल हो गया। It was so wonderful. Yes, वही मैं बोल रही थी। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, और जिस तरीके से आपका जज्बा है उस जज्बे को फिर से हम एक बार सलाम करते हैं। तो ओवर टू यू रुबीना जी, मेरा सेम क्वेश्चन आपसे भी है कि व्हाट इज योर मैसेज एंड एडवाइस टू द यंग गर्ल्स एंड वुमेन ऑफ उत्तर प्रदेश? मेरा भी यही है कि मतलब आप लोग आगे आइए, अपने टैलेंट को पहचानिए, डरिए मत समाज से, और मतलब जो भी करना चाहते हैं, मतलब एज अ वुमेन हम लोग पीछे नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ हम नहीं कर सकते हैं। मुझे भी 15 साल लगे, मैं कैसे, मतलब इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। ये सेशन बहुत कम है, मैंने बहुत कुछ फेस किया है पर्सनल ऑन माय एंड। कितनी बार मैंने जो है वो मतलब बिजनेस बंद भी कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने बहुत मेहनत करी है। आई हैव वर्कड हार्ड। आई वाज प्रेग्नेंट विद माय चाइल्ड। आई वाज 7 months प्रेग्नेंट। मैं फिर भी एग्जीबिशंस कर रही थी। आई हैड वर्कड रियली हार्ड टू बी वेयर आई एम। तो जैसे गीतांजलि मैम ने कहा कि हार्ड वर्क कभी भी मतलब इट ऑलवेज पेज ऑफ। मतलब मुझे 15 साल लगे, 2004 या 5 में मैंने शुरू करा। अब मैं कह सकती हूँ प्राउडली दैट आई हैव रीच्ड वेयर आई वांटेड टू रीच, बट इट टुक मी 15 लॉन्ग इयर्स, सो मेनी डिसअपॉइंटमेंट्स, सो मेनी लॉसेस, बट देन आई एम हियर। तो ये है कि हाँ, आप अपने मतलब ख्वाबों को मतलब पूरा करने की कोशिश करिए, आगे आइए। मेरा ये कहना है कि आप एजुकेशन इज अ मस्ट। मैं ये बात बहुत ज्यादा एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, मतलब इट इज एजुकेट योरसेल्फ। वो हमेशा काम आती है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है लड़कियों के लिए
कि वो कभी भी मतलब इवन कभी जाया नहीं जाती, वो आपको हमेशा काम आएगी। तो मेरा ये है कि आप लोग प्लीज मतलब लड़कियों के लिए कि हाँ मतलब ट्राई टू एजुकेट योरसेल्फ, जो आपके हुनर है, जो आप कुछ करना चाहते हैं, वो देयर इज नो स्टॉपिंग यू। आप सब हम लोग अपना हिडन पावर, औरतें जो है उनको लगता है कि नहीं कर पाएंगे, बट हमारे अंदर बहुत बहुत शक्ति है, वी कैन डू इट। Yes, we Thank you can very do it. much. Awesome. रुबीना जी, मैं भी मेरे लिए भी एक सूट बनाइएगा यार, मैंने कभी पहना नहीं है। It would be my pleasure. Definitely it would be मैं my जरूर pleasure. आपके हाथ का सूट पहनना चाहूंगी, वैसे मैंने कभी पहना नहीं है, कोई लेकिन बात आपकी नहीं, इतनी definitely. ज्यादा वो सुना है तो मैं जरूर आपके हाथ का एक सूट पहनना चाहूंगी। जरूर I would दीजिएगा, love मुझे to, एक गिफ्ट जरूर definitely. दीजिएगा। Definitely, I would love to. I would love to. It would be my honor. थैंक यू Over to you, डॉक्टर Dr. Mariam. मरियम एंड साजिदा मैम, थैंक यू हाँ, सो thank you. मच। रियली मैं आप आज ने मतलब देखिए, मैं अगर बता पाई हूँ, उनको इंकरेज कर पाई हूँ बिकॉज ऑफ भाई आपकी टीम और आप, सो इसके लिए मैं आपसे बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि देखिए मैं अपनी बात नहीं तो कैसे बताऊं, कैसे मैं उनको इंकरेज करती। सो ये आप जरिया बने हो, आपने इसको आगे लाने का किया है, सो बहुत थैंक यू सो मच, रियली प्राउड ऑफ यू साजिदा मैम, रियली। थैंक यू सो मच गीतांजलि मैम। लेकिन ये सारा क्रेडिट जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म वुमेनोवेटर को जाता है, जिसने हम सबको इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ा, और ऐसी औरतों को जो कुछ आगे करना चाहती है, जिनमें कुछ करने का जज्बा है, उनके लिए वुमेनोवेटर हमेशा अवेलेबल है, ये प्लेटफॉर्म उनको आगे ले जाने के लिए। तो वी ऑल आर थैंकफुल टू अ वुमेनोवेटर, दिस प्लेटफॉर्म, दिस ग्रेट इनिशिएटिव ऑफ तृप्ति जी। सो ओवर टू यू मरियम। Definitely. Indeed, I would like to add to it, to what Miss Sajida ji has said कि Womennovator अगर नहीं होता तो वाकई आज हम सब भी कनेक्टेड नहीं होते, और ना ही हम इतने टैलेंटेड लोगों से मिलते, ना ही हम उनसे इंस्पिरेशन लेते। सो डेफिनेटली Womennovator एक Definitely. बहुत I बड़ा agree प्लेटफॉर्म totally. है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप लोग जैसी शख्सियत हैं अभी भी हमारे बीच में, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, जो लोगों को बहुत बड़ा बड़ा मैसेज देती हैं, तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। So I would like to thank you, Ms. Gitanjali Sharma and Ms. Rubina, for taking out time to speak with us related to your struggles and your achievement, and giving us additional insight into the responsibilities and the duties which are related to your current professions. I hope that our conversation today has motivated all those talented women out there who are actually looking for the role models in form of you people. And in the end, I would like to end this session with a small quotation. A woman is the full circle. Within her is the power to create, nurture, and transform. Thank you so much for coming here. Thank you and so much, thank you very Harsha, much for ma'am. such Thank you so much, informative Mariam. session. Thank you. एक It was छोटी a सी पिक्चर pleasure. क्लिक कर लीजिए, मुझे चाहिए ये सब इकट्ठे सब लोगों